Hi everyone, a very warm welcome to everyone in this today's session. And today we are going to see the next poem of your ISC class 11th and 12th Rhapsody, the poem number 4, that is Death of a Naturalist. Death of a Naturalist is a very interesting poem written by a new poet for you, that is Seamus Heaney. Seamus Heaney is a very interesting Irish poet. Okay, he is an Irish poet, playwright, and a translator as well. So let's see uh, what is the meaning of this title, Death of a Naturalist. At the first sight, when you see this title, when you saw this title, you start thinking that what is going to happen in this poem. Okay, why this title is very strange? You find this title very strange, isn't it? You find this title very weird, that what is going to happen. A death of a naturalist means, is there anything going to, is someone is going to die in this poem, or something going to happen very bad in the poem? So the answer is no. Actually, this poem tells us the curiosity. What? The curiosity of a poet, of a narrator during adolescence become fade in his youth age. Okay, means when he was a child, when the poet was a child, he used to love the things a lot. But when he become elder, when he grown up, okay, then all the things which he used to love is they all are faded. Okay, so let's dive into the title and let's see more thoroughly what we are going to deal in this poem. Okay, now let me tell you that in this poem, this frog, that is Rana Tigrina, isn't it? This frog it plays a very crucial role. It plays a very important role. ये जो frog है ये बहुत ही important role को play करता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ये वेदर बताता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो पोइट हैं उनका इंटरेस्ट, जब वो छोटे थे तो उनका इंटरेस्ट फ्रॉग्स में, मेनली फ्रॉग में, एनिमल्स मतलब मेनली फ्रॉग में काफ़ी ज़्यादा था. पर जैसे ही वो बड़े हुए तो उनका जो इंटरेस्ट है वो गायब होता गया, वो नीचे गिरता गया, है ना. तो यही सीज़न ये पोर्ट्रेट यही बता रहा है कि जब व्हेन ही वाज स्मॉल then he was like this, and when he become elder, then this was the condition of the poet. Means he was not having any curiosity, any enthusiasm in the national things, in the natural things. So let's see about Seamus Heaney, because you are reading about this person for the very first time. So Seamus Heaney, he was born in April 1939, and as I told you, he is an Irish poet. Okay, he is an Irish poet. Irish means he is belonging from Iraq. Okay, he is an Irish poet, born in April 1939. He is the eldest member of a family which would eventually contain 9 children. So he is a member of that family which is having family are having 9 children. They are having 9 children. Okay, और उनके जो father हैं, okay, his father owned and worked a small farm of 50 acre in country Derry in Northern Ireland. ओके, उनका ये छोटा सा काम था, वेयर ही यूज्ड टू डू द फार्मिंग इन द 50 acre लैंड गिवन बाय, मतलब टेकन बाय हिम, ओके, इन द कंट्री डेरी इन नॉर्दर्न आयरलैंड. ओके, बट फादर्स रियल कमिटमेंट वॉज टू कैटल डीलिंग. मतलब उनका असली काम क्या था, इनके फादर का असली काम था कैटल को डील करना. ओके, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उन्हें डील करना, लाइक कैटल्स, लाइक buffaloes, okay, like cows and goats, sheeps, these all things. Okay, I hope you are clear with this concept, with his concept, Seamus Heaney. This is Seamus Heaney, you could see over here. Okay, so let's move to the
poem, let's see, let's discuss about the title of the poem, that is that of a naturalist. Now, here I have applied two photos. Okay, the one is this and the next is this. Now let me tell you later. First of all, let's see what is the meaning of that of a naturalist. As I told you, when the narrator was very small, okay, when the narrator was very small, okay, he went, वो गया था, नरेटर जो है वो कहाँ गया था, एक फ्लैक्स डैम में गया था. फ्लैक्स डैम आप देख सकते हैं, इस तरीके का फ्लैक्स डैम होता है. ओके, दिस इज फ्लैक्स डैम, जहाँ पे फ्लैक्स नाम का एक फ्लावर होता है. ये फ्लैक्स का फ्लावर है. ओके, यहाँ से हम एक फाइबर को निकालते हैं जिसका नाम होता है लेलेन. वो मैं अभी सब आपको बताऊँगा, ठीक है. तो जो पोइट हैं वो एक दिन, मतलब जब वो छोटे थे तो वो कहाँ गए थे, डैम में गए थे जहाँ पे फ्लैक्स उन्होंने देखा था. फ्लैक्स इस तरीके के फ्लावर्स आते हैं, आप देख सकते हैं. ओके, तो फ्लैक्स डैम में उन्होंने देखा. सो उन्होंने याद किया, उन्हें याद आया कि टीचर ने उन्हें क्या बताया था. ओके, जब वो फ्लैक्स डैम पे गए थे, फ्लैक्स डैम पे उन्होंने क्या देखे थे, फ्रॉग स्पॉन देखे थे. फ्रॉग स्पॉन क्या होते हैं, अगर आप बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि फ्रॉग स्पॉन क्या होता है. फ्रॉग स्पॉन एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट द एग्स ऑफ फ्रॉग. ये अंडे होते हैं जब फ्रॉग के एग्स. ओके, फ्रॉग के एग्स होते हैं फ्रॉग स्पॉन. ओके, छोटे छोटे एग्स को कहा जाता है फ्रॉग स्पॉन. तो उन्होंने फ्रॉग स्पॉन को देखा था कहाँ पे, फ्लैक्स डैम में. ओके, तो जब उन्होंने देखा तो वो कलेक्ट करने लगी फ्रॉग स्पॉन को. ओके, वो कलेक्ट करने लगे फ्रॉग स्पॉन को, क्योंकि उन्हें उस टाइम पे उनकी टीचर ने बताया था. उनके टीचर का नाम है मिसेस बेल नाम है उनकी टीचर का. तो उनकी टीचर ने उन्हें बताया था कि किस तरीके से जो फ्रॉग है वो पूरा चाइल्डहुड से लेके अपने मतलब चाइल्डहुड नहीं है, मतलब एक फ्रॉग स्पॉन से एक पूरा एडल्ट फ्रॉग बन जाता है. किस तरीके के डिफरेंट स्टेजेस आते हैं उसके लाइफ में, वो सारी मतलब एक लाइफ साइकिल बताई थी फ्रॉग की. ओके, नाउ जब उन्होंने देखा कि जो फ्रॉग स्पॉन है, ओके, वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो वो थोड़े से फ्रॉग स्पॉन अपने साथ घर पे ले आए थे. किसमें, एक जार में. ओके, तो जैसे ही वो जार में, मतलब एक जैम जार था, एक उसमें फ्रॉग स्पॉन को ले रहे थे. ओके, बहुत खुशी से ले रहे थे वो, मतलब इकट्ठे कर रहे थे जिससे कि वो अपनी विंडो सिल पे रख सकें, सजा सकें उन फ्रॉग स्पॉन को. पर जैसे वो उन्होंने हाथ डाला, अब मतलब उस डैम में, उस आप कह सकते हैं पॉन्ड में. ओके, तो वैसे ही एक बुल फ्रॉग का मतलब है एक बहुत बड़ा फ्रॉग. ओके, बहुत बड़ा फ्रॉग. ओके, वो गुस्से से उसके ऊपर छलांग लगा दी उस फ्रॉग ने. किसके ऊपर, पोएट के ऊपर. जैसे उस पोएट के ऊपर उस फ्रॉग ने छलांग लगा दी तो उससे जो फ्रॉग है, जो बुल फ्रॉग है, उसने पोएट को काटना चाहा. ये देख के पोएट बहुत ज़्यादा डर गए और तभी से पोएट का इंटरेस्ट था फ्रॉग में, वो ख़त्म हो गया. ओके, उनका जो इंटरेस्ट था नेचर में, उनका जो इंटरेस्ट था फ्रॉग्स में, वो ख़त्म हो गया. और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट. मतलब एक नेचुरलिस्ट जो पहले मेनली नेचर से, या मेनली आप कह सकते हैं फ्रॉग से प्यार करता था, उसे पसंद करता था. उनके फ्रॉग स्पॉन, मतलब उनके जो एग्स हैं, उन्हें लेकर अपने विंडो में सजाते थे, मतलब अपने घर को सजाते थे. आज उन्होंने इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म कर दिया है अपना. ओके, उनका जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया जस्ट बिकॉज, क्योंकि एक बुल फ्रॉग जो था, एक बड़ा फ्रॉग जो था, उसने अटैक कर दिया था. इट वॉज इन एन अटैकिंग पोजिशन. ओके, जो वो फ्रॉग था वो अटैकिंग पोजीशन पे था पोएट के. तो उसने जैसी छलांग लगाई, इट ट्राइड टू बाइट द पोएट, और तभी से जो इंटरेस्ट था पोएट का वो ख़त्म हो जाता है रिगार्डिंग फ्रॉग्स, रिगार्डिंग द नेचर, मेनली फ्रॉग्स. ओके, यहाँ पे फ्रॉग की बात हुई है तो इसलिए आई हैव अप्लाइड दिस फोटो because frog plays a very crucial role. Now I hope you all know what are frog spawn and what are froglets, okay, what are an adult frog. ये सब आपको पता हो क्योंकि आप लोअर क्लासेस में बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं. अगर नहीं पता इट्स ओके, आई विल टेल यू दैट एज वेल. ओके, so let's without any delay let's start the poem.
I have told you about the poem. So let's see. Let's start the poem. It is a very beautiful poem. बहुत ही ज़्यादा beautiful poem है. Okay, तो जैसे कि मैंने बताया, death of a naturalist मतलब there's a discrete of a person from the nature. ओके, नेशनलिस्ट आप सिंपल भाषा में बिल्कुल समझे तो उसका मतलब क्या होता है? बायोलॉजिस्ट, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स में इंटरेस्ट हो. सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. ओके, हु इज हैविंग अ इंटरेस्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में इंटरेस्ट हो उसे ही हम क्या कहते हैं? नेशनलिस्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, तो ये पोम हमें बताती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि हाउ a curiosity-full boy who used to love the nature a lot, who used to love this frog a lot. Okay, not frog but the nature a lot. एक फ्रॉग की वजह से वो नेचर को हेट करने लगता है. He discreet from the nature. Okay, तो let's see the poem. Okay, बहुत ही प्यारी सी पोम में मैं आपको बताऊंगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. ओके, ऑल ईयर द फ्लेक्स डैम फेस्टर्ड इन द हच ऑफ द टाउनलैंड, ग्रीन एंड हेवी हेडेड. फ्लेक्स हैड रोटेड देयर, वेटेड डाउन बाय ह्यूज शॉट्स. ओके, ऑल ईयर द फ्लेक्स डैम मैंने आपको बताया, एक बार फिर बताता हूँ. दिस इज कॉल्ड फ्लैक्स. ये फ्लैक्स है, आप देख लीजिए, ये फ्लैक्स है जो कि कहाँ पे है? फ्लैक्स डैम में है. ठीक है, इस फ्लैक्स को सड़ाया जाता है. इसका प्रोसीजर क्या होता है? इस फ्लैक्स में से एक फाइबर निकलता है, उस फाइबर का नाम है लिनेन. लिख देता हूँ इधर, देखो इसका एक प्रोसेस बताते हैं. ये हमारा फ्लैक्स में से एक फाइबर निकलता है. ये जो है ये फ्लावर है. ओके, फ्लैक्स का फ्लावर है. ओके, इस फ्लावर को जब मतलब इस पेड़ को जब हम ड्राई करते हैं, ओके सॉरी, जब हम इसे रॉट करते हैं, ड्राई नहीं रॉट करते हैं, सड़ाते हैं इसे, रॉटेड इन द वाटर. जब हम इसे रॉट करते हैं तब इसमें से हमें क्या मिलता है? एक फाइबर मिलता है. और उस फाइबर का नाम क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है. सॉरी, लेट राइट विद दिस सेम पेन. ओके, इससे लिख देते हैं, या इससे नहीं, रेड से लिखते हैं. ओके, उस फाइबर का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नाम याद रखना है. उस फाइबर का नाम होता है लिनेन. ओके, क्या नाम होता है? लिनेन. ओके, तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है? देखो, एक पॉन्ड होता है, फ्लेक्स डैम का मतलब है पॉन्ड. तो पॉन्ड में एक फ्लेक्स नाम का प्लांट होता है. फ्लेक्स नाम का एक प्लांट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर, ये पूरा फ्लेक्स प्लांट है. ये पूरा फ्लेक्स नाम का प्लांट है. ठीक है, तो फ्लेक्स नाम के प्लांट को क्या किया जाता है? उसे वाटर में सोक किया जाता है, जिससे कि उससे क्या बन सके? लिनेन नाम का फाइबर बन सके. ओके, लेट इट रिमूव दिस बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर साइकिल. पूरा यही एक हायरार्की है आपकी. ओके, ये तो ये दिस इज़ द फ्लावर ऑफ फ्लेक्स. ये फ्लेक्स का फ्लावर होता है. ठीक है, ये फ्लेक्स का फ्लावर है. इसका एक और बार मैं प्रोसेस बता देता हूँ. देखो, इस फ्लेक्स के प्लांट है, इस फ्लेक्स के प्लांट में से फ्लेक्स का फ्लावर निकलता है और फ्लेक्स निकलता है. ठीक है, फ्लेक्स कुछ नहीं है, एक प्लांट है. ओके, एक प्लांट है. ये जो होता है इसे फ्लेक्स ही कहते हैं. ये पूरा ग्रीन है, ये पूरा फ्लेक्स है, सिर्फ इसके इसे छोड़कर, फ्लावर को छोड़ के. तो इस फ्लेक्स को क्या किया जाता है? इसे पॉन्ड में डाल दिया जाता है. ठीक है, इसे पॉन्ड में डाल दिया जाता है, मतलब
एक तालाब में डाल दिया जाता है और उसे घंटों तक बहुत ही धूप में, बहुत ही कड़ाकेदार वाली धूप, मतलब स्कॉचिंग समर आप कह सकते हैं, ओके, स्कॉचिंग समर में इसे सड़ाया जाता है, रॉट किया जाता है। देखो सबसे पहले हमने फ्लैक्स लिया, फ्लैक्स को रॉट किया बहुत ही स्कॉचिंग समर में, धमाके वाली समर, गर्मी में, बहुत ही गर्मी में हम रॉट करते हैं। जब वो पूरी तरीके से रॉट हो जाता है तो कुछ और प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को करने से हमें एक फाइबर मिलता है जिसका नाम होता है लिनेन। लिनेन एक नाम का फाइबर है जो कि कपड़े बनाने के काम आता है। एक फाइबर है ना, तो वो कपड़े बनाने के काम आता है। अब समझ आया, प्रोसेस समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस समझाना आपको, ठीक है। सो अब नाउ लेट्स स्टार्ट। अब आप समझ पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे क्या है फ्लैक्स, क्या है फ्लैक्स डैम, है ना। फ्लैक्स क्या है, एक फाइबर है जिससे हमारे लिनेन नाम का एक फाइबर निकलता है। एक प्लांट है जिससे हमारा लिनेन नाम का एक फाइबर निकलता है। डैम क्या है, एक पॉन्ड है जहाँ पे लिनेन को सड़ाया जाता है। समझ आया, आई होप। नाउ लेट्स स्टार्ट। All year the flax dam festered in the heart of the townland। मतलब पूरे साल जो फ्लैक्स है, फ्लैक्स मतलब जो मैंने अभी बताया एक फाइबर, ओके, फ्लैक्स नाम के प्लांट को, ओके, फ्लैक्स नाम के प्लांट, इस प्लांट को फेस्टर्ड का मतलब होता है सड़ाना, ओके, फेस्टर्ड का मतलब होता है डिके करना, सड़ाना, ओके। फेस्टर्ड वर्ड सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है पर इसका मतलब होता है डिके करना। तो क्या कहा जा रहा है कि पूरे साल फ्लैक्स को एक पॉन्ड में, एक डैम में सड़ाया जाता है। इन द हार्ट ऑफ द टाउनलैंड, हार्ट का मतलब होता है इन द मिडिल, समझना, हार्ट कहाँ होता है, मिडिल एरिया में होता है। तो जो टाउनलैंड है, टाउनलैंड का मतलब जो स्मॉल टाउन है, ओके, उसके बीच में एक पॉन्ड है जहाँ पे इस फ्लैक्स को सड़ाया जाता है जिससे कि हम इससे लिनेन नाम के फाइबर को निकाल पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन एंड हैवी हेडेड फ्लैक्स हैड रॉटेड देयर। ग्रीन एंड हैवी हेडेड फ्लैक्स हैड रॉटेड देयर मतलब जो ग्रीन कलर के फ्लैक्स होते हैं एंड हैवी हेडेड का मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब उनमें फाइबर्स होते हैं, ओके, उन्हें क्या किया जाता है, उन फ्लैक्स को सड़ाया जाता है वहाँ पर, कहाँ पे, इस पॉन्ड में, ओके। वेटेड डाउन बाई ह्यूज सॉर्ट मीन्स और उसके ऊपर जो है वो मिट्टी डाल दी जाती है। वेटेड डाउन मतलब उस फ्लैक्स को दबा दिया जाता है विद द ह्यूज सॉर्ट का मतलब होता है मड, मिट्टी से, सॉरी मैट नहीं, मड, ओके। सॉइल से उस फ्लैक्स को दबा दिया जाता है, ठीक है, उस फ्लैक्स को दबा दिया जाता है जिससे कि वो अच्छे से सड़ पाए, और जितना अच्छे से सड़ेगा उतनी ही ज़्यादा क्या करेगा, लाइक अच्छा लिनेन देगा, ओके। दैट्स वाई ही सेड फेस्टर्ड का मतलब डिके, सड़ा देना, बिल्कुल बदबू आने लगना उसमें से, है ना। देन daily it sweltered in the punishing sun, bubbles gargled delicately। मतलब रोज़ उसे मतलब बहुत स्कॉचिंग समर में, पनिशिंग समर मतलब स्कॉचिंग समर, ओके, इंटेंस हीट में उसे स्वेल्टर्ड किया जाता है। स्वेल्टर्ड का मतलब होता है सड़ाना, स्वेल्टर्ड मतलब बुलबुले उसमें फूटने लगना, है ना, एक्सट्रीमली हॉट होना, ओके। उसे स्कॉचिंग समर में इंटेंस हीट कह लें या आप स्कॉचिंग समर कह दें, स्कॉचिंग सन समर कुछ भी कह दो, है ना। डेली उस फ्लैक्स को सड़ाया जाता है। स्वेल्टर्ड मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट समर में उसे मतलब डाला जाता है। नाउ बबल्स गार्गल डेलिकेटली, ब्लू बॉटल्स bob a strong gauze of sound around the smell। Now
जो इतना ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि उस डैम में से बबल्स होने लगते हैं। बबल्स गागर्ड डेलिकेटली मीन्स उस डैम में से बबल्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। ओके, बबल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होने, डेलिकेटली का मतलब है सॉफ्टली, मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्के हल्के बबल्स से फूटने लगते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है। ब्लू बॉटल्स बोब अ स्ट्रॉन्ग गॉज ऑफ साउंड अराउंड द स्मेल। ब्लू बॉटल एक नाम के इंसेक्ट है। ओके, ब्लू बॉटल इंसेक्ट का नाम है। तो ब्लू बॉटल जो इंसेक्ट है, ओके, वो बहुत ही ज़्यादा उस स्मेल में, जो गंदी सी स्मेल आ रही होती है, फेस्टर्ड स्मेल आ रही होती है, उस स्मेल में वो चारों तरफ घूमती है उस स्मेल के, है ना। आप लोगों ने देखा नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है वहाँ पे हाउस फ्लाइज और बहुत सारे तरह के इंसेक्ट्स आ जाते हैं, है ना। सेम वहीं पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा डिके हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, तो इसलिए वहाँ पे ब्लू बॉटल नाम की एक इंसेक्ट आ जाती है और वहाँ पे वो फ्लाई करने लगती है चारों तरफ। ओके, it flies very, this blue bottle, it flies very fastly and produce a very sharp noise. Okay, next there were dragonflies, spotted butterflies, और हाँ, उस जगह पे, उस डैम में, ओके, उस डैम में ड्रैगन फ्लाइज भी थी, जो कि ड्रैगन फ्लाइज स्पॉटेड बटरफ्लाइज, मतलब देयर वर ड्रैगन फ्लाइज। ओके, वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज भी घूम रही थी, साथ ही साथ स्पॉटेड बटरफ्लाइज भी घूम रही थी। स्पॉटेड मतलब जिनमें कुछ लाइक पैटर्न्स बने होते हैं, स्पॉट्स होते हैं उनमें, है ना। तो ये सारे इंसेक्ट्स क्या बताते हैं? ये सारे इंसेक्ट्स बताते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, वहाँ पे लाइक बैक्टीरियल डिकेशन हो रहा है ना। वहाँ पे बैक्टीरियल क्या कह सकते हैं आप, केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, वहाँ पे बैक्टीरियल रिएक्शंस चल रही हैं, है ना। वहाँ पे डिके कर रहा है, बैक्टीरिया जो हैं वो डिके कर रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स उसी चीज़ के हैं। चाहे आप ब्लू बॉटल को ले लें, ब्लू बॉटल कोई नीली बॉटल नहीं पड़ी है वहाँ पे, ब्लू बॉटल एक इंसेक्ट का नेम है जो कि ब्लू कलर का होता है, छोटा सा। ओके, उस इंसेक्ट का नेम है, वो वहाँ पे घूम रहा है चारों तरफ, उस डैम के ऊपर घूम रहा है, और उसे वो जो स्मेल है बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। साथ ही उसमें स्पॉटेड बटरफ्लाइज हैं, साथ ही साथ ड्रैगन फ्लाइज भी घूम रही हैं। ये सारे इंसेक्ट्स बताते हैं कि इन्हें ये एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट द पोइट सेड दैट बट बेस्ट ऑफ ऑल वॉज द वार्म थिक स्लोबर of frog spawn that grew like clotted water in the shade of the banks. Now poet says, पर मुझे सबसे अच्छा, उन सब में सबसे अच्छा मुझे क्या लगा? The thick slobber. Slobber का मतलब होता है जो सलाइवा होती है, जो सलाइवा होती है किसकी? फ्रॉग की। ओके, मतलब आप कह सकते हैं जो फ्रॉग स्पॉन्स होते हैं, ओके, जो फ्रॉग्स की एग होते हैं, सिंपल। ओके, तो पोएट कह रहा है कि उसमें ड्रैगन फ्लाइज हैं, ब्लू बॉटल्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, सब कुछ है, बट मुझे सबसे अच्छी चीज़ उसमें ये लगी कि उसमें फ्रॉग स्पॉन्स भी हैं, उसमें फ्रॉग के एग्स भी हैं। फ्रॉग स्पॉन मतलब द एग्स ऑफ द फ्रॉग्स। ओके, उसमें फ्रॉग स्पॉन भी हैं, और फ्रॉग स्पॉन्स दैट ग्रू लाइक क्लॉटेड वाटर। वो फ्रॉग स्पॉन दैट ग्रू लाइक क्लॉटेड वाटर, वो हॉट वाटर में ग्रू रह रहे हैं। दे आर लिविंग इन अ हॉट वाटर। ग्रू का मतलब होता है हॉट, सॉरी, क्लॉटेड का मतलब हॉट होता है। ग्रू मतलब वो बढ़ रहे हैं वहाँ पे, फ्रॉग स्पॉन वो हॉट वाटर में बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, इन द शेड ऑफ द बैंक। इन द शेड ऑफ द बैंक्स मतलब किनारे पर, इन द साइड ऑफ द बैंक। ओके, इन द साइड ऑफ द बैंक्स, किनारे पर। हियर एवरी स्प्रिंग, नाउ ही सेड दैट here every spring I would fill jam pot fulls of the jellied specks to rage on window sills of home। और मैं हर समर में हर स्प्रिंग में आता हूँ। ओके, मैं हर स्प्रिंग में आता हूँ और इन
इन फ्रॉग स्पॉन को, ओके, इन फ्रॉग स्पॉन को मैं अपनी बॉटल में, ओके, जैम्स फॉल फुल मतलब मैं अपनी बॉटल में फिल कर लेता हूँ ऑफ द जेलीज। मतलब पोइट कहना चाह रहे हैं कि मैं हर स्प्रिंग सीजन में आता हूँ और फ्रॉग स्पॉन को अपनी जार में, अपने जैम जार में कलेक्ट कर लेता हूँ और उसे मैं अपने घर की विंडो सिल्स पर रखता हूँ। विंडो सिल्स मतलब जो विंडो के किनारे हैं उस पर रखता हूँ। ओके, नेक्स्ट ही सेड दैट स्पेक्स, नाउ ही सेड स्पेक्स टू रेंज ऑन विंडो सिल्स एट होम, मतलब मैं अपनी विंडो सिल्स पर रखता हूँ अपने घर के। नेक्स्ट, on shelves at school and wait and watch until the fattening dots burst into nimble swimming tadpoles। और मुझे इतना ज़्यादा मतलब अफेक्शनेशन है, मतलब मैं इतना ज़्यादा अफेक्शनेट हो चुका हूँ, मैं इतना ज़्यादा इन्फैचुएट हो चुका हूँ उन फ्रॉग स्पॉन के थ्रू कि मैं उन्हें अपने स्कूल में भी ले जाता हूँ। मैं उन फ्रॉग स्पॉन को अपने स्कूल में भी ले जाता हूँ और अपनी स्कूल की कहाँ रख देता हूँ, अपने स्कूल की विंडो, अपने स्कूल की शेल्फ पर रख देता हूँ। ओके, अपनी स्कूल की शेल्फ मतलब अपने स्कूल के किनारे पर रख देता हूँ। शेल्फ मतलब उस जो टेबल है उसे कह रहा है, ठीक है, अपने स्कूल की टेबल पे रख देता हूँ और मैं उसे देखता हूँ, मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ उन्हें until the fattening dots burst into nimble swimming tadpoles, जब तक कि वो जो एग्स हैं फ्रॉग के वो फूट नहीं जाते हैं इनटू टेडपोल। देखो, एक एग फूटेगा फ्रॉग का तो उसमें क्या निकलेगा, टेडपोल निकलेगा, ठीक है। जब तक जो एग का, जो फ्रॉग का एग होता है वो एक एम्ब्रॉयक स्टेज में होता है। एक एम्ब्रॉयक स्टेज मतलब एक एग में होता है। जब तक वो एग बना हुआ है तब तक हम उसे क्या कहेंगे, फ्रॉग स्पॉन। तब तक हम उसे क्या कहेंगे, फ्रॉग स्पॉन, मतलब मेढक के अंडे, ठीक है। पर जैसे ही वो अंडा हैच होता है, एज द एग हैचेज आउट, इट ब्रेक आउट, उसमें से जो सबसे पहले क्रिएचर निकलता है बिल्कुल छोटा सा, उसी को हम क्या कहते हैं, टेडपोल। अब टेडपोल जो होता है वो उसके पास लिम्स सिर्फ आगे के लिम्स होते हैं, उसके बाद पीछे के लिम्स नहीं होते। अब नाउ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट, ओके, सो आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ लिम्स, टेडपोल, सब कुछ आपको पता होगा। लिम्स का मतलब होता है जो हाथ पैर होते हैं, ठीक है। तो पोइट कहना चाह रहे हैं कि जब एग हैच होता है और उसमें से टेडपोल निकलता है तो उसके सिर्फ लिम्स, पीछे के लिम्स होते हैं, आगे के लिम्स होते ही नहीं हैं। ओके, तो इसलिए वो सिर्फ एक फ़िश की तरह दिखाई देता है। वो किसकी तरह दिखाई देता है, फिश, मछली की तरह दिखाई देता है। और इसलिए सिर्फ वो पानी में ही रहता है जब तक उसके आगे वाले लिम्स भी नहीं आ जाते। उसके पीछे वाले लिम्स रहते हैं, सिर्फ आगे वाले लिम्स गायब रहते हैं। तो जब तक उसके आगे वाले लिम्स नहीं आ जाते, जब तक उसके आगे वाले पैर नहीं आ जाते, या आप हाथ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, तब तक वो पानी में ही रहता है, तब तक वो एक्वेटिक एनिमल रहता है। आप सबको पता है एक फ्रॉग एम्फीबियन होता है। फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, मतलब वो दोनों में रह सकता है, वेदर इन अ वाटर और वेदर ऑन लैंड, वो दोनों में रह सकता है। ओके, तो उनके पास मतलब कैपेसिटी है वो दोनों जगह को रहने की। दे have the respiratory tract as well as they are also having the gills, उनके पास गिल्स भी होते हैं, isn't it? तो एम्फीबियंस जो होते हैं, मीन्स जो फ्रॉग्स होते हैं, वो दोनों जगह रह सकते हैं। तो इसलिए पोइट कहना चाह रहे हैं कि जब तक उनके आगे वाले पैर नहीं निकल आते वो पानी में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। और जब उनके हाथ पैर निकल आते हैं तो वो पानी से बाहर आ जाते हैं और लैंड पे रहने लगते हैं। अरे पैर नहीं होंगे, हाथ नहीं होंगे तो किससे चलेगा, किसी से नहीं चल सकता ना। तो इसीलिए पोइट कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पोइट कहते हैं कि मैं स्कूल में भी उन्हें ले जाता हूँ और जो अपना टेबल है उस पर उस जार को रख देता हूँ जिसमें मैंने फ्रॉग स्पॉन्स को रखा है, और मैं देखता हूँ कि कैसे वो थोड़े छोटे छोटे करके हैच होते हैं। उनकी जो अंडे हैं वो फूटते हैं और उनमें से क्या निकलता है, एक छोटा सा टेडपोल निकलता है जिसके पास उसके लिम्स नहीं हैं। Who do not have any limbs, उसके पास लिम्स नहीं हो, इसलिए वो वो चल नहीं सकता, तो वो सिर्फ तैर सकता है क्योंकि उसके पास लिम्स ही नहीं है, वो चलेगा किससे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है स्विमिंग टेडपोल। नाउ मिस वॉल्स would tell us how the daddy frog was called a bullfrog. Now Miss Wall is the name of the poet's teacher का नेम है ये। Maybe she is his biology teacher, ये उनकी बायोलॉजी टीचर हैं, ओके। तो जो मिस वॉल्स हैं वो बताती हैं दैट हाउ अ डैडी फ्रॉग
वॉज कॉल्ड अ बुल फ्रॉग, कि कैसे एक डैडी फ्रॉग मीन्स एक जो बड़ा फ्रॉग है वो एक बुल फ्रॉग कहलाता है. Okay, and how he croaked, and how the mammy frog laid hundreds of little eggs, and this was frog spawn. और कैसे जो बुल फ्रॉग है वो साउंड करता है, croaked means croaking की साउंड करता है. croaking मतलब टर टर इस तरीके की साउंड को क्या कहते हैं हम, क्रोकिंग साउंड कहते हैं. ठीक है, तो वो कैसे क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है. और हाउ द मैमी फ्रॉग, हाउ जो लेडी फ्रॉग होती है, मादा जिसे हम कहते हैं, लेडी मतलब मादा. ओके, जो फीमेल फ्रॉग होती है बेसिकली, हाउ शी लेड हंड्रेड्स ऑफ लिटिल एग्स, वो कैसे मतलब बहुत सारे एग्स को ले करती है, और कैसे वो फ्रॉग स्पॉन मतलब आते हैं. मतलब पूरा प्रोसीजर बताया गया कि कैसे फ्रॉग स्पॉन होते हैं. मतलब इट इज़ प्रोड्यूस बाय लेडी, सॉरी इट इज़ प्रोड्यूस बाय द फीमेल फ्रॉग. ओके, बिकॉज इट oozes out all these frog spawn. Okay, you could tell the weather by frogs too, for they were yellow in the sun and brown in the rain. Now जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि और यही नहीं, तुम फ्रॉग्स के कलर को देख के उनका वेदर भी बता सकते हो. तुम्हें पता है फ्रॉग्स के कलर को देख के हम उनका वेदर भी बता सकते हैं. ऑब्वियसली हम बता सकते हैं. अगर फ्रॉग का कलर येलो है तो इट इज़ द समर सीजन, ये समर सीज़न है. और जैसे ही उनका कलर ब्राउन हो जाता है तो वो रेनी सीजन आ जाता है. आपने देखा होगा फ्रॉग्स को, फ्रॉग्स के कलर चेंज होते रहते हैं, है ना. तो जैसे ही वो क्या होता है, येलो कलर का होता है, तो it is a summer season, means it is the sun season. But as soon as it converts into brown, it is a rainy season. Okay, I hope this thing is clear to you. Let's move to the next thing, next stanza. Next stanza says, then one hot day when fields were rank with cow dung in the grass, the angry frogs invaded the flax dam. मतलब कहना चाह रहे हैं कि और एक गर्मी के दिन, वन हॉट डे व्हेन द फील्ड वर रैंक्ड विद काउडंग, मतलब जो फील्ड है उस पर बहुत सारा काउडंग पड़ा था. काउडंग मीन्स द एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ अ काउ, है ना. हिंदी में मैं आपको नहीं बता सकता काउडंग क्या होता है. यू ऑल नो, यू आर एन ICSE बोर्ड स्टूडेंट. ओके, यू शुड नो दिस. काउडंग मीन्स द एक्सक्रीटरी, द बेस्ट पार्ट ऑफ अ काउ और बिफलो. ठीक है, तो एक गर्मी के दिन, वन हॉट डे, द फील्ड्स वर ऑल फिल्ड विद काउडंग, पूरा जो फील्ड था वो काउडंग से भरा हुआ था. ओके, इन द ग्रास द एंग्री फ्रॉग्स इन्वेडेड द फ्लैक्स डैम, और जो एंग्री फ्रॉग था, ओके, इट इन्वेडेड इन द फ्लैक्स डैम. इट जो एंग्री फ्रॉग था, हाउ ही वॉज इन एन अटैकिंग पोजिशन. इन्वेडेड का मतलब होता है अटैक करना, सॉरी, अटैकिंग पोजीशन में अटैक करना. ठीक है, तो जैसे ही जो फ्रॉग के ऊपर काउडंग गिरा, तो जो बुल फ्रॉग है, बुल फ्रॉग मतलब जो फ्रॉग्स हैं, सॉरी, वो बहुत ज़्यादा अटैकिंग पोजीशन में आ गए. मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए. ओके, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए. एंड दे केम अप, ओके, दे केम अप फ्रॉम द फ्लैक्स डैम, वो फ्लैक्स डैम से बाहर आ गए. I dug through hedges to a coarse croaking that I had not heard before. और मैंने ऐसी आवाज़ फिर पहले कभी नहीं सुनी थी फ्रॉग्स की. मतलब they were producing this sound so intense, their sound was so intense that it was looking very horrible. मतलब ये बताता है कि जो फ्रॉग्स हैं वो कितने ज़्यादा एंग्री थे, कितने ज़्यादा गुस्से में थे, है ना. तो पोइट कहता है कि पहले मैं जब आया था तो दे वर लुकिंग वेरी हैप्पी. ओके, पर अब मैं जब आया हूँ तो इतनी बुरी तरीके से वो लोग साउंड निकाल रहे हैं कि ऐसी साउंड मैंने कभी सुनी ही नहीं फ्रॉग्स की. ओके, देन द एयर वॉज थिक विद अ बास chorus. Okay, right down the damn cross bellied frog bird croach. और जो उनकी साउंड थी, ओके, जो उनकी साउंड से पूरी एनवायरनमेंट थिक हो गया था. इतनी ज़्यादा साउंड आ रही थी कि उन फ्रॉग्स की साउंड से पूरा एनवायरनमेंट थिक हो गया था. मतलब पूरा एनवायरनमेंट में उनकी साउंड इको करने लगी थी. ओके,
राइट डाउन द डैम क्रॉस वेलीड फ्रॉग वर क्रोक्ड, और तभी नीचे से एक फैट बेलीड फ्रॉग मतलब ग्रॉस बेलीड फ्रॉग मतलब फैट बेली फ्रॉग, जिसकी पेट जो है वो मोटा होता है, फैट बेली फ्रॉग जो है वो क्रोक करने लगा। मतलब बाकी सारे फ्रॉग्स तो कर ही रहे थे, गुस्से में चिल्ला ही रहे थे, है ना, पर नीचे से एक डैडी फ्रॉग आया। डैडी फ्रॉग मतलब बहुत बड़ा फ्रॉग आया नीचे से उस डैम में से, और वो भी चिल्लाने लगा बहुत बुरी तरीके से। ओके, ओ सॉर्ड्स देयर लूज नेक्स पर्ल्स लाइक सेल्स सम होप्ड, और उनकी जो ऑन सॉर्ट्स मतलब पीसेस पर, ग्रास के जो पीसेस हैं, ग्रास पर मतलब घास पर, दे लूज नेक्स पर्ल्स लाइक सेल्स सम होप्ड, और कुछ तो ऐसे उछल रहे थे उस घास पर, मतलब चिल्ला रहे थे इतनी बुरी तरीके से, क्योंकि वो अटैकिंग पोजीशन पे थे, है ना, वो अटैक करने वाले थे, तो इसलिए वो कूद रहे थे। और जब वो कूद रहे थे बहुत मोटे मोटे मेंढक, तो ऐसा लग रहा था सॉरी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि जो सेल जो मतलब वो होता है ना, बोट होती है, शिप होती है, तो उसके जो सेल होता है ऊपर, जो मतलब हवा की वजह से चल रहा होता है सेल, है ना, जैसे ये बोट हो गई, तो बोट पे ये जो एरिया होता है जो हवा की वजह से आगे बढ़ाता है बोट को, है ना, इसकी तरह उस फ्रॉग की स्किन लग रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा लटक गई थी उस फ्रॉग की स्किन, मतलब इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि उनकी जो पल्स, नेक पल्स मतलब जो नेक की स्किन थी वो बिल्कुल सेल कर रही थी। किसकी तरह? जैसे ये सेल होता है ना, इसे हम सेल कहते हैं इस चीज़ को, इसकी तरह बिल्कुल लग रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी, इतनी ज़्यादा लटक गई थी वो, है ना। द स्लैप एंड प्लॉप वर ऑब्सेंस थ्रेड्स, एंड द स्लैप एंड प्लॉप पर ऑब्सेंस थ्रेड मतलब जो साउंड थी उनकी। ओके, स्लैप एंड प्लॉप यहाँ पे साउंड को कहा गया है। जो फ्रॉग्स की साउंड थी, जो डैडी फ्रॉग मतलब जो फादर फ्रॉग थे, उनकी उसकी जो साउंड थी, इट वॉज वेरी लाइक हॉरेबल, इट वॉज टेरेबल। ओके, वर ऑब्सेंस थ्रेड मतलब बहुत ज़्यादा डरावनी थी। सम सेड पोइज्ड लाइक मड ग्रेनेड्स, देयर ब्लंट हेड फार्टिंग, एंड कुछ तो मतलब कुछ फ्रॉग्स थे, ओके, दे वर सिटिंग इन एन अटैकिंग पोजीशन, वो ऐसी पोजीशन में बैठे थे जैसे वो अभी हम पर अटैक कर देंगे। ओके, वो बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन में बैठे थे। पोइज्ड का मतलब होता है पोजीशन। ओके, पोजीशन लाइक मड ग्रेनेड मतलब वो अटैकिंग पोजीशन में थे। ओके, एंड देयर ब्लंट हेड्स फार्टेड, उनका जो हेड है उसमें से आवाज़ें आ रही थी, है ना, टर टर बहुत जोर जोर से आवाज़ें कर रहे थे, लाइक अ फार्दिंग। ओके, बहुत जोर जोर से आवाज़ें कर रहे थे और बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन में लग रहे थे। आई सेकेंड टर्न्ड एंड रन द ग्रेट स्लाइम किंग्स नाउ। अब पोइट कहता है कि उनकी ऐसी आवाज़ें सुन के, इतनी डरावनी आवाज़ें सुन के, आई गॉट एग्जॉस्टेड, मुझे थकावट हो गई और मैं बीमार हो गया। ओके, आई सेकेंड टर्न एंड रन मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गया और मैं उधर से जल्दी जल्दी भागा। ओके, द ग्रेट स्लाइम किंग्स वर गैदर्ड देयर फॉर वेंजेंस, द ग्रेट स्लाइम kings were gathered there for vengeance, and I knew that if I dipped my hands the spawn would clutch it. अब कहता है कि जो ग्रेट स्लाइम किंग का मतलब है जो बुल फ्रॉग है, जो फादर फ्रॉग है, जो बुल फ्रॉग है मतलब बहुत बड़ा फ्रॉग। ओके, ग्रेट स्लाइम किंग का मतलब है बहुत बुल फ्रॉग, बहुत बड़ा फ्रॉग। तो द ग्रेट स्लाइम किंग्स वर गैदर्ड देयर फॉर वेंटेज मतलब बुल फ्रॉग्स जो है वो मतलब खड़े हो गए वहाँ पे, उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, क्लस्टर बना दिया मुझ पर अटैक करने के लिए, मुझे पनिश करने के लिए। ओके, फॉर बेंटेज, बेंटेज का मतलब होता है पनिशमेंट। ओके, पनिशमेंट, बेंटेज का मतलब वेंजेंस का मतलब होता है पनिशमेंट। ओके, तो जो बुल फ्रॉग्स हैं, जो डैडी फ्रॉग हैं, जो फादर फ्रॉग हैं, वो इकट्ठे हो गए, वो गैदर हो गए मुझे पनिशमेंट देने के लिए। एंड आई न्यू दैट इफ़ आई डिप्ड माई हैंड्स द स्पॉन वुड क्लच इट, और मुझे पता था कि अगर अब मैंने अपना हाथ डाला फ्रॉग स्पॉन को पकड़ने के लिए, तो जो फ्रॉग्स हैं, ओके, जो
बड़े बड़े बुल फ्रॉग्स हैं वो मुझे काट लेंगे, दे विल क्लच मी, दे विल कट मी, मीन्स दे विल बाइट मी. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस पोम. यहीं तक थी ये पोम, यहाँ पे ये पोम ख़त्म हो जाती है. ओके, आई होप आपको समझ आ गई हो अच्छे से पोम. इसमें ये बताया गया है कि कैसे जो फ्रॉग्स पहले जो पोइट जब पोइट छोटा था तो कैसे वो फ्रॉग्स पोम को जब लाता था तो मतलब सब कुछ ठीक था. ओके, कैसे वो इंटरेस्टेड था फ्रॉग्स पोम को लाने में. ओके, पर जैसे उन डैडी फ्रॉग ने उस बुल फ्रॉग ने जैसे उस पर अटैक किया, जैसे उसकी उंगली क्लच करनी चाहिए, ओके, उसकी वो हाथ को क्लच कर दिया, क्लच मतलब होल्ड कर दिया, पकड़ लिया या काट लिया, तो तभी से जो पोइट है उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया फ्रॉग स्पॉन में. और इसलिए दैट्स वाई द टाइटल इज़ वेरी ट्रू. ओके, जो टाइटल है वो बिल्कुल सही है, दैट ऑफ अ नेचुरलिस्ट. इसीलिए दे आर द नेचुरलिस्ट इन दैट पोइट लाइक इट डेड. क्यों डेड हो गया? क्योंकि जो बुल फ्रॉग्स हैं उन्होंने जब उस पर अटैक किया तो उसका जो मतलब उसका जो प्यार था टुवर्ड्स फ्रॉग स्पॉन वो ख़त्म हो गया. इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं. अब सपोज़ आपको एक बाइसिकल चाहिए, ओके, आपको एक बाइसिकल चाहिए, तो अगर 2-3 दिन आप एक अपने फ्रेंड से बाइसिकल लेने चाहते हैं और वो आपको दे देता है प्यार से, तो आप ऑब्वियसली आप यू विल बी वेरी हैप्पी कि अरे वाह वो मुझे दे देता है. पर अगर आप 1 महीने बाद जाएं उससे बाइसिकल लेने, मतलब लगातार आप 1 महीना हो गया आपको बाइसिकल लेते देते, एक वक्त ऐसा आएगा जब वो आपसे मना कर देगा कि नहीं मेरी बाइसिकल मत ले जाओ, जाओ तुम अपनी खरीदो खुद की. तो आपको बुरा लगेगा ना, आपको बुरा लगेगा, आपको गुस्सा आएगी और आप ये कहेंगे कि अब मैं उसके घर नहीं जाऊँगा दोबारा उससे बाइसिकल लेने. इज़न्ट इट? तो सेम यहीं पे पोइट के साथ हो रहा है कि पहले जब फ्रॉग स्पॉन को देखता था पोइट तो वो बहुत खुश हो जाता था. उससे ड्रैगन फ्लाइज और कुछ भी नहीं पसंद आती थी, उसे सिर्फ एक चीज़ पसंद आती थी, दैट इज़ फ्रॉग्स. फ्रॉग्स में उसका इंटरेस्ट था. दैट्स व्हाई आई अप्लाई दिस फोटो ओवर हियर. ओके, पर जैसे उन बुल फ्रॉग्स ने उसे क्लच किया, उसे काटा, उसे होल्ड किया, वैसे ही पोइट का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया. एंड दैट्स व्हाई दिस टाइटल इज़ वेरी ट्रू, दैट ऑफ अ नेचुरलिस्ट. ओके, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू. ओके, सो दैट्स इट. बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. यहीं तक थी हमारी पोएम. एंड इफ़ यू लव दिस वीडियो देन डोंट फॉर टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन. अगर इसे समझेंगे तो बहुत ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी पोएम है ये, है ना. दो इट इज़ लिटिल लेंदी बट वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. थैंक you guys for being there, so lovely. That's it, bye bye, stay tuned for more videos. Bye guys, and if you love this video then like the video, subscribe to the channel and press the bell icon as well. Bye guys, go have a good day.